یہ سوال تو اس اسٹیٹ سے آپ کو پوچھنا چاہیے. یہ اسٹیٹ بنائی اس لیے, اس کی جوڈیشری اس لیے بنی ہے, اتنی بڑی اسٹیٹ ہے. یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے. انسرجنسی انہوں نے کیسے اسٹارٹ کی, سوالات اگر آپ نے پوچھنے ہیں تو ان سے پوچھے, اور اسٹارٹ سے پوچھے کہ وائلنس کا استعمال کس نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا, اور جو فورس آپ استعمال کر رہے ہیں انوسنٹ پیپل پر, وہ کس نے پہلے اسٹارٹ کیا. اگر انسرجنسی ہے, اگر وہاں پر اسٹیٹ کے فورسز پر حملے ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس عملے کے جواز پہ نہتے شہریوں پر حملہ آور ہو اور ان کو ابڈکٹ کرے اور ان کو سالوں تک جو ہے نا صرف ان کی شناخت کے نام پر, بلوچ ہونے کے نام پر ان کو جو ہے نا اغوا کیا جائے. یہ جسٹیفیکیشنز نہیں دینے چاہیے. اٹس ناٹ اے جسٹیفیکیشن. کہیں پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آیات بلوچ کو اس لیے مارا گیا کہ ساتھ میں کوئی ایمبوش ہوا ہے, کسی ایف سی کو مارا گیا, ایف سی نے غصے میں آ کر آیات بلوچ کو مارا. دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن. کیا آپ کے قانون اور عدالت میں جو ہتھیار آپ کو دیے گئے, کیا اسٹیٹ آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتی؟ کیا اس کی رپورٹس آپ کے پاس نہیں ہیں؟ کیا آپ نے یہ طاقت آپ کو دی گئی ہے, اس طاقت کو آپ کہاں اور کس طرح استعمال کریں گے؟ کیا آپ ان حملوں کی مذمت کرتی ہیں جو اسٹیٹ سیکورٹی فورسز پہ ہوتی ہیں؟ دیکھیں, میں ان حملوں کی مذمت کرتی ہوں. اگر ان کی مذمت کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں اسٹیٹ کو بولتی ہوں کہ میں ان کی مذمت کرتی ہوں, مگر کیا آپ اس مذمت کے ساتھ ان کے پیاروں کو رعا کریں گے؟ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آئیں اور ان کے پیاروں کو رعا کریں. تھینک یو. کیا جو موجودہ حکومت ہے, کسی ڈیلیگیشن کی آپ سے جو ملاقات ہوئی ہے, دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہیں اگر ان سے پورا نہیں کیا جاتا تو کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے, ابھی تک مجھے افسوس ہوتا ہے, جب سے ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی ہے ہم ہر جگہ سے گزر رہے ہیں. یہ مائیں مجھ سے مسلسل پوچھ رہی ہیں, بار بار آتی ہے, پوچھتی ہے ہمارے بیٹوں کے لیے بات کی کسی نے؟ کوئی بول رہا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو رہا کیا جائے گا؟ کسی نے ہمیں سنجیدہ نہیں لیا. ہم جہاں جہاں سے گزرے, ہمیں ایون دو ڈی جی خان کی انتظامیہ نے بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی. کوئٹہ میں ہمارا سٹن ہوا, کوئی سنجیدہ طور پر آیا نہیں, ہم سے پوچھا نہیں کس لیے بیٹھے ہو, کیا سر درد ہے. 80 سال کے بوڑھے یہاں بیٹھے, بچے بیٹھے 8 ماہ کے, کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. اگر آئے تو ان کے پیغامات آئے جن میں ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا, یہ قرار دیا گیا کہ یہ ایجنٹس ہیں, یہ کسی اور کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا کاز ہے؟ اگر انفورس ڈس اپیرنس آپ کے آئین اور قانون کے تحت اللیگل ہے یا نہیں ہے, آپ کی ڈیموکریسی کے تحت اللیگل ہے یا نہیں ہے, ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. اگر یہ اللیگل ہے سو دین ہمارا کاز لیگل ہے. ہم آپ سے آپ کی جوڈیشری کو ہی سپورٹ کرنے کا بول رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں اپنے اداروں کو فعال کرو, جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں ان کو لاؤ, اپنے عدالتوں میں پیش کرو. ان میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے بچے کو لاؤ میرے ہاتھ میں دو. سب آپ سے یہ کہیں گے کہ اپنی عدالتوں میں لاؤ. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی آئے ہیں, انہوں نے مارچ کیا ہے, ان کے خلاف دیکھیں ان کو, ان کے چہروں کو دیکھیے, پتھر اٹھا سکتے ہیں, یہ چھل بھی نہیں سکتے ہیں. یہ آپ سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ان کے کیسز جمع ہیں آپ کی عدالتوں میں, آپ کے کمیشنوں میں. یہ وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے کرتے تھک چکے ہیں. یہ تو آپ سے پرامن طور پر آ کر آپ سے ڈیمانڈ کر رہے, بھئی آپ سے رحم مانگ رہے کہ بھئی ان کے بچوں کو رہا کرو. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر جو بلوچستان کے لواحقین ہیں, لاپتہ افراد ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کون آپ کے پاس آیا؟ آرمی چیف آئے, چیف جسٹس آئے, یا وزیر اعظم؟ دیکھیں, ہمارے لیے ہم اسٹیٹ کے پاس آئے, ہمارے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو انصاف کس سے مل سکتا ہے, یہ بتائیں, امید کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کے اداروں سے آپ پوچھیں. ہم ریاست سے انصاف مانگنے آئے ہیں. جو بھی اختیار رکھتا ہے وہ آئے, اختیار جس کے پاس بھی ہے ہم اس سے اختیار مانگنے آئے ہیں. اگر وزیر اعظم ان لوگوں کی رہائی کا اختیار رکھتے ہیں تو وہ آئے, ہم سے بات کریں. ہم ان سے اور کچھ نہیں مانگیں گے. ہمارا آئینی مطالبہ یہ ہے. آپ بول رہے 50 ہے نا, جتنے خاندان یہاں بیٹھے آپ ان کے لوگوں کو رہا کریں. 50 ہے یا 70 ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو رہا کریں. آپ ان کو رہا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو آپ ان کو رہا کریں. اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں, جو تربت کے کورٹ میں, سیشن کورٹ میں جو CTD کے اوپر FIR کی گئی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں, CTD کو لگام دیں. اگر آپ ان ڈیمانڈز کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو مکمل کرنے کی اختیار رکھتے ہیں, میں مسلسل کہہ رہی ہوں ہم ہر کسی سے ملنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا بات کرنے کے لیے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہے. وہ پولیس جس نے ہم پر لاٹھی برسایا, ہم آج بھی ان سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سرفراز بگٹی کو بھی ریپلائی کیا مسلسل ٹویٹس کر کے آپ کے کاز کے حوالے سے. دیکھیں, جو بھی اس کاز کو سپورٹ نہیں کرتا ہے, کیونکہ ہم پیسفل پروٹیسٹرز ہیں اور ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہم جو گالی گلوچ کی زبان بولتے ہیں, ہم وہ گالی گلوچ کی زبان میں ہم ان کو جواب نہیں دیں گے. ہمارا طریقہ الگ ہے. ہم جو ہے نا ایک الگ نظریے سے بندھے ہوئے لوگ ہیں, اور میں سرفراز بگٹی کو جواب دینا ہی نہیں چاہتی ہوں. اس کے جواب میں پورا بلوچستان کھڑا ہے.
अगर वो इन्फोर्स डिसअपेयरेंस को इलीगल कहता है, अगर वो कहता है कि ये लोग अकेले हैं और इन लोगों को, ये लोग जो है ना किसी एजेंट के उस पर है, किसी जो है ना तंजीम ने इनको यरगमाल बनाया हुआ है, तो जाएं देखें, सरफराज बुगटी जाकर देखें। पूरा बलूचिस्तान आज सरापा एहतजाज है, पूरा बलूचिस्तान बंद है और हमारी एक कॉल पर फिर से पूरा बलूचिस्तान बंद होगा। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये काज ऐसा है कि इसको सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान से मिल रही है, सिंध से मिल रही है, पंजाब से मिल रही है। दिस इज़ अ जेन्युइन काज। आप इसको गाली गलोच से आप हकीकत को छुपा नहीं सकते, आप इस चीज़ को जो है ना जवाब फराहम नहीं कर सकते। आप जितना जस्टिफाई करेंगे, जितना वायलेंस यूज़ करेंगे, ये तहरीक है, ये इतनी ही बढ़ती जाएगी। अफसोस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमसे पूछा जाता है कि रियासत जो है ना मामलात को हल कर रही है, ये हल नहीं है। हम निकले हैं कि हमारे हज़ारों लोग आपने अगवा किए हैं, आप उनको इंसाफ दें, और आप इसके बदले में और लोगों को अगवा कर रहे हैं। ये आपकी संजीदगी है। जहाँ जहाँ से हम गुजरे वहाँ से लोगों को अगवा किया गया। यहाँ इस शहर में वो स्टूडेंट्स जो इस मार्च का वेलकम करने आते थे, जो PhD स्कॉलर्स हैं, उनके वेयर अबाउट्स अननोन है। हम नहीं जानते वो कहाँ पे है, हम नहीं जानते वो कहाँ पे। और हमें ये भी खदशा है कि कल को उनकी फेक इनकाउंटर की जाएगी, कल को ये रियासत उनको फेक इनकाउंटर करेगा। और जितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया, हमें ये भी खदशा है कि उसके बाद भी उनको अबडक्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी उनकी लाशें फेंकी जा सकती है। तो ये अबडक्शन का मसला, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है, जिसको आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया है। डॉक्टर साहिबा, ये बात जो आप कर रही है, ये आप पहली दफ़ा नहीं कर रही है, इससे पहले भी बहुत लोग ये बात कर चुके हैं, मिसिंग पर्सन्स की बात कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मंजूर अहमद पश्तीन की, जो आजकल वो भी सलाखों के पीछे है, तो उनके साथ आप लोगों का कोई ममासलत है? देखिए मतलब इससे पहले भी मैं और भी इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ, तो इनकी कंसिक्वेंसेस का आपको पता है कि क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस हमने सबसे पहले बर्दाश्त किए। कॉन्सिक्वेंसेस को जितना बलूचिस्तान ने झेला है उतना किसी ने नहीं झेला है। और हम तमाम जो मज़लूमों की तहरीकें हैं उनकी सॉलिडारिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मंजूर पश्तीन को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उसकी मूवमेंट को क्रश किया जा रहा है क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, वो उस जेन्युइन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है, जो जेन्युइन इश्यूज़ जो है ना हमारे ऐवानों में हाईलाइट नहीं होते हैं। हमारे ऐवानों में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, सॉरी टू से इक़्तिदार की भूख में जो है ना वो बातें डिस्कशंस होती है। जहाँ पे आपको प्रोग्राम डिस्कशन करने चाहिए थे, जहाँ आपको इंसाफ और अदल देना चाहिए था, वहाँ पे जो है ना इक़्तिदार की भूख में सब वो हो जाते हैं। लेकिन ये वो तहरीकें हैं, मंजूर पश्तीन के साथ साथ जितने भी तहरीकें हैं वो मज़लूम अवाम की तहरीकें हैं। पश्तूनों की आवाज़ है मंजूर पश्तीन, और हम उनकी हिमायत करते हैं। और अगर रियासत उसको क्रश कर रही है तो हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं कि ये गलत है। आप जो है ना उस आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं जो आवाज़ जो है ना पूरे पश्तूनों की आवाज़ है। थैंक यू। जी नहीं, हम पुरअमन तरीके से, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है स्टेट को कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना गुमशुदा हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ FIR हुए हैं, और जहाँ जहाँ से हमारी मार्च गुजरी है वहाँ उन लोगों पर FIR किए गए। खोलू में FIR हुए हैं, डेरा गाजी खान में हुए हैं, कोयटा में हुए, वो सारे FIRs वापस लिए जाएँ, इन स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए। हम पहले भी कह चुके थे हम पीसफुली यहाँ बैठना चाहते थे। ये तमाशा इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना करके जो है ना अपने आप को ही मैं कहती हूँ कि सारी जो बात हम कहना चाहते थे उन्होंने उस चीज़ में आसानी पैदा कर दी। 3 दिन बाद क्या करेंगे? कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिसकी वजह से आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया। क्या समझते? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? आप हमें ये बताएं, इस्लामाबाद पुलिस को ये बताएं। मैं स्टेट से पूछती हूँ, जब आपके स्टेट के अंदर कोई बलोच, कोई पश्तून, कोई सिंधी, उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है, तो कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? हम यहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्या इस शहर में हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है? और हमसे ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे सियासी पार्टियों ने 10-10 दिन तक धरने दिए हैं, इस शहर को पूरा जाम किया है। उस वक्त आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद नहीं आई? इन माओ और बच्चों की वजह से आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद आती है? ये क्या करेंगे? ये हिल नहीं सकते, अपनी जगह में पड़े हैं। इतनी सर्दी है, ये लोग अभी भी ये लोग हमें बोल रहे थे कि हम रात को भी वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ बैठे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को ये खदशा था, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं, रियासत को ये खदशा था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो मीडिया आएगी, उन्होंने जो जब्र किए, जो तमाम वायलेशंस उन्होंने किए, वो उनके सामने आएंगी। क्योंकि बलूचिस्तान एक नो गो एरिया है। आप जितने भी यहाँ पे कैमरे
है ना, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। कोयटा की दारुल हुकूमत में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप ही की मीडिया चैनल जितने आते हैं वो सामने खड़े होते हैं और वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट में बोल रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते, इस वजह से उनको पता है कि वो चलाई नहीं जा सकती। बलूचिस्तान की में जितनी जद्दोजहद है, वो तहरीक आगे बढ़ी है, तो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुई है। यहाँ हमें ना लाने का सबसे बड़ा खदशा ये था कि उनको पता था कि जो रियासती जबर है वो यहाँ आया होंगे अगर ये मार्च आएगी, क्योंकि हम किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। हमारी जो तहरीक है वो लापता अफराद के ख़ानदानों के साथ मुंसलिक है। हम कत्ल व गारत के ख़िलाफ़ निकले और हम जो बात कर रहे हैं, हम आपके साथ लॉजिक के साथ बैठेंगे, दलाइल के साथ बैठेंगे। आप जो सबूत मांगेंगे सबूत देने के लिए तैयार है। आपकी अदालतों में इनके प्यारों की केसेस वो सबूत है। वो बेचारे आपकी अदालतों की एक पेशी के लिए तड़पते हुए आते हैं, किराए नहीं होते उनके लिए, आपके जज के सामने पेश होते हैं और इस उम्मीद से पेश होते हैं कि आप उनके प्यारों को लाएंगे। और जज जो है ना वो एयरिंग भी नहीं करता है, सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं। इनका सबूत जो है ना आपकी उन्हीं अदालतों में मौजूद, इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं जिन पर एयरिंग्स हुई है, लेकिन आप लोगों में से आपके बेख्तियार अदालतों ने उन लोगों को आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। या हमारे पीछे जो है ना मेरगुल मरी का ख़ानदान मौजूद है, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद भी इस रियासत ने जो है ना उस बंदे को अभी तक रिलीज़ नहीं कर सके हैं। ये है इस रियासत के अदारों की इख्तियार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइंदा अमल हम आगे बताएंगे। हम ये कह चुके हैं कि अभी तक तो हमने हमारे 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद हम अपना आइंदा अमल आगे बताएंगे। ये तहरीक इस धरने के साथ ख़त्म नहीं होगी, ये तहरीक आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस तहरीक को अब पूरे बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान का भी सपोर्ट हासिल है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज पहली मर्तबा इस रियासत ने जो बीज बोया था, सबसे पहले वो ये था कि हमें तकसीम किया, हमें इस चीज़ में तकसीम किया कि आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप पश्तो हो, आप बलोच हो। इस वजह से हमने एक दूसरे की नस्ल कुशी को बर्दाश्त किया, इसी वजह से हमने आंखें बंद की। और जब बलोच मर रहा था तो सब के सब ने अपनी आंखें बंद की और बलोच ने उस टाइम भी कहा था कि ये मारदार पंजाब तक पहुंचेगी और ये मारदार आज पंजाब तक पहुंच चुकी है। जस्ट रिस्पॉन्ड टू वन क्वेश्चन प्लीज। वो जो औरतों को फोर्सफुली दोबारा भेज रही थी इस्लामाबाद पुलिस, वो सिलसिला खत्म हो गया है, वो चली गई है या इधर ही है? जी नहीं, वो सारे औरतें यहाँ मौजूद हैं। नहीं, हम लोग पीछे ये सब के सब कौन है? थैंक यू।